Hi guys, welcome back to my channel. So this video is going to be on one-stop solution for all of your queries regarding your accommodation, fees, infrastructure, expenses, orientation, scholarships and everything else that you need to know. So make sure you watch this video till the end and without any further ado, let's move into the video. So coming to our first point, that is accommodation, and according to me a PG and a hostel will be a more safer choice for the first year rather than a flat, because you are new to the place and adjusting in a flat would be very difficult, and plus managing all the meals of your day, so it becomes very difficult because आप नए हो शहर में, आपको किसी अभी इतना नहीं पता होता. And if even if you want to desperately live in a flat, I will suggest that you can do that from second year. A lot of my friends who live in PG now are moving to hostel for the second years because now they know कि कैसे मैनेज करना है सब. दिल्ली का ना समझ आ जाती है, बिकॉज एडजस्टिंग इन दिल्ली इज नॉट एन ईजी जॉब. ठीक है, आपको टाइम बहुत लग जाता है अडेप्ट करने को दिल्ली के पीपल को, मतलब कॉलेज को, एंड ऑल द वेज दैट यू हैव टू गो थ्रू, सारे रास्ते सब समझ आना चाहिए. एंड लेट्स एडमिट द फैक्ट दैट दिल्ली इज दिल्ली, एंड पेरेंट्स को थोड़ा सा डर लगता है, ट्रस्ट मी, जब आप कहोगे कि दिल्ली एडमिशन हो गई है, बिकॉज there is not a good image of Delhi in everyone's mind. They think that इधर वो होता है, इधर वो होता है. So and if you know the meaning of वो that I'm referring to. ठीक है, and let's come back to topic. ठीक है, so I will suggest that कि please PG और hostel ही लेना for the first years. ठीक है, and अगर आपको बाद में आप गए हुए हो दिल्ली, अगर आपको समझ है कि दिल्ली में कैसे रहना है, देन यू कैन कंसिडर ऑफ टेकिंग अ फ्लैट, बट अकॉर्डिंग टू मी फ्लैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन. ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर एट लीस्ट आई माइट से, बिकॉज एक बेड चाहिए होता है, मील्स प्रॉपरली आपकी अरेंज्ड चाहिए होती है जो इतना थक के आते हो कॉलेज से, बिकॉज अभी आपका फर्स्ट ईयर है तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा अडेप्ट करने में. एंड जब मैं भी थक के आई होती थी, मेरे को बस होता था आई नो दैट आई हैव अ डिसेंट प्लेस टू सिट एंड डू माई वर्क एंड ईट फूड. ठीक है, आई डोंट हैव टू डू एनी वर्क एंड I can concentrate on my work that I have to do for my college assignments and presentations. ठीक है, so coming back to hostel, and there might be a little delay in the allotment of hostels to you, because first you have to confirm that you have got a seat in any college and you have to show them proof like fee receipt or seat allotment receipt जो आपको मिलती है while paying your fees. ठीक है, but the first step you have to do is that कि जो आपको college allot हुआ है वहाँ पे आप देखो आपके लिए separate girls या boys hostel है भी, because there are only few colleges that प्रोवाइड यू विद द हॉस्टल फैसिलिटी. ठीक है, एंड उसके लिए भी आपको बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट्स लगती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल योर CGPA और योर फॉर द फर्स्ट ईयर देयर इज नो CGPA, इट्स माय बैड. ठीक है, सो पहले तो आपको मेरिट बेसिस में मिलता है, एंड उसके लिए यू शुड हैव अ गुड CUT स्कोर्स एंड यू शुड नॉट बी लिविंग इन द दिल्ली NCR रीजन. मार्क माई वर्ड्स, दिल्ली NCR रीजन वालों को कोई हॉस्टल नहीं अलॉट होता है. जो दूर से रहने वाले बच्चे आते हैं उनको ही हॉस्टल्स अलॉट होते हैं. ठीक है, and main one condition is that ki you should have a guardian living or residing in the NCR region. In case you have a bad health or anything, to manage with all that, you should have a guardian that is living in the Delhi NCR region, so that he or she can come and pick you and take care of you. ठीक है, and now coming to our PGs. So PGs तो आपको abundantly available मिलेंगे हर region में, in your north campus, south campus या off campus. And I can say that I have not been to south campus or off campus, but there are my friends that say कि PG फैसिलिटी अवेलेबल है, सो उसके बारे में चिंता मत करो. एंड आई कैन से अबाउट नॉर्थ कैंपस की, नॉर्थ कैंपस में तो बहुत PG दिखेंगे, हर जगह PG ही PG है. ठीक है, एंड यू कैन गेट PGs इन कमला नगर, रूपनगर या मलकागंज वेयर हंसराज इज सिचुएटेड. ठीक है, उसके बाद आपको GTP नगर, आपको हर जगह PG मिल जाएंगे फ्रॉम अ रेंज टू 12K अप टू 30K, एंड इट इज द स्टार्टिंग प्राइस 12K. डोंट थिंक दैट की तो बहुत ज्यादा है, तो 12K के अंदर नीचे या फिर उसके ऊपर आपको गुड PGs मिल जाएंगे, एंड 12K के नीचे तो आई कांट गारंटी यू कि उससे उस रेंज में आपको अच्छे PG मिलेंगे. एंड इफ यू एंड अप फाइंडिंग इट, इट इज वेरी गुड फॉर यू. ठीक है, द मेन की इज दैट यू हैव टू हंट अ लॉट फॉर अ PG फॉर अ डिसेंट बेड एंड अ गुड फूड फैसिलिटी. ठीक है, एंड इफ यू थिंक दैट कि PG का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, देन यू कैन ऑलवेज कंसिडर हॉस्टल्स एंड योर अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल फॉर वुमेन दैट DU प्रोवाइड्स. ठीक है, एंड द मेन थिंग इज दैट कि जो हॉस्टल्स होते हैं ना उनमें सीट बहुत कम होती है, लिमिटेड सीटिंग ही होती है. एंड बट जब मैं बच्चों को देखती हूँ ना हॉस्टल वाले की, दे वेक अप 5 minutes बिफोर द क्लास एंड दे wear something good and they come to college, whereas the PG students have to wake up an hour before, take a bath, arrange everything, eat food and that.
is that we can say I'm get jealous of कि जिनको PG मिल जाता hostel मिल जाता है, but in the end both PG and hostel have their own pros and cons and I have weighed them all for you. ठीक है, so उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको PG में लेना है या हॉस्टल में रहना है. ठीक है, एंड इफ यू कंसिडर दैट कि इसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है PG में रहने के, देन यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल्स फॉर वुमेन दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाई DU एंड उसकी फीस वे मोर चीपर होती है देन योर PGs. ठीक है, तो उसको कंसिडर कर सकते हो, बट द फैसिलिटीज आर ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली, लाइक योर नो AC और नो Wi-Fi. ठीक है, सो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर योर अकोमोडेशन आई माइट से, बट इट इज अप टू यू कि आपको कहाँ रहना है, PG में रहना है, हॉस्टल में रहना है, अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल में रहना है या फ्लैट में रहना है, एंड विच एवर यू आर कंफर्टेबल टू. एंड नाउ लेट्स मूव टू अ सेकंड पॉइंट दैट इज एक्सपेंसेस. So for your expenses, the first one will be your fees. And जैसे ही आपकी फीस डिपॉजिट हो जाती है, आपको सीट अलॉट होती है, प्लीज रश योर सेल्फ और योर पेरेंट्स टू दिल्ली, वट एवर सूट्स यू बेस्ट. ठीक है, क्योंकि आपके जैसे ही आपको सीट अलॉट होगी ना, हर बच्चा दिल्ली की तरफ जाएगा सो दैट वो PGs या हॉस्टल या कुछ भी जहाँ उनको रहना है वो बुक कर सके. एंड सीट्स इतनी जल्दी फिल होंगी ना आपके PGs वगैरह की, तो आपको एक अच्छा PG नहीं मिलेगा, या फिर अगर अच्छा मिलेगा तो उसके कॉस्ट अप ऑफ द स्काई होंगे, बिकॉज PG ओनर्स भी नीड के अकॉर्डिंग अपना प्राइस हाई कर देते हैं. सो उसके अकॉर्डिंग प्लीज जल्दी से जाना और अपना बेड्स बुक कराना अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि वहां पे ना आपकी बुकिंग फी होती है. थोड़ा सा बेड्स बुक कराना कि यू आर कंफर्टेबल विद दैट बेड एंड आपको एरिया भी अच्छा लग रहा है तो यू आर कंफर्टेबल कि आप वहां रह सकते हो, तो वहां पे अपना एक बेड बुक करके आ जाना, बिकॉज अगर आप बाद में भी आओगे ना तो आपको सीट नहीं मिलती है. इन माई केस ऑल्सो माई पेरेंट्स वेंट टू दिल्ली एंड दे केम, मतलब वो PG बुक कर आए थे, देन ओनली आई वॉज गुड कि मेरे को सीट है अगर मैं वहां जाऊंगी, बिकॉज बेड बुक था. उसके बाद जो बच्चे आए ना, दे वर नॉट इवन हैप्पी. वो दे ट्राइड टू शेयर एक्सपीरियंस विद मी कि हमें गुड अच्छा PG नहीं मिला बिकॉज हम बहुत लेट हो गए थे. सो प्लीज ये गलती मत करना, जैसे ही आपको सीट मिलेगी ना जल्दी से दिल्ली जाकर अपना सीट्स या अपना बेड बुक कर आना. ठीक है, सो फर्स्ट आपका फीस हो गया, देन इज योर PG बुकिंग फी. उसके बाद सारे खर्चे आपके शुरू होते हैं अगर आपने उसकी तैयारी करनी है, अगर कपड़े लेने हैं, सामान लेना है. ठीक है, जैसे कि आपका द मोस्ट हेल्पफुल थिंग, द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू गेट इज योर लैपटॉप्स. ठीक है, लैपटॉप बहुत जरूरी है, और हेडफोन्स, बिकॉज हेडफोन आपके बहुत जरूरी हो जाएंगे अगर आपने मेट्रो में ट्रैवल करना है. एंड अगर कई बार अकेले ट्रैवल करना पड़ता है ड्यू टू सम रीजंस, तो यू हैव टू गेट अ हेडफोन्स या ईयरफोन्स वट एवर यू सूट्स यू. ठीक है, तो उसको ले आना वो बहुत जरूरी होता है. कभी कभी आपको 2 शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग बेड में मिलता है, सो योर प्राइवेसी मैटर्स द मोस्ट, तो हेडफोन्स चाहिए होते हैं. ठीक है, एंड बुक्स, रजिस्टर्स, पेन्स वगैरह वो तो यहाँ से भी मिल जाते हैं. सो देयर इज नो नीड कि आप अपने बैग्स भर के लेके आओ वहां से एंड यहाँ पे आके सब सेटल करो. वहां पे भी आपको गुड डिसेंट प्राइसेस में मिल जाएगा सब कुछ. ठीक है, तो बैग्स भरने की कोई जरूरत नहीं है. उसके बाद आई विल से दैट उसके बाद आपके मेट्रो का कार्ड का रिचार्ज, एंड उसके बाद आप जो बुक्स लोगे, रेफरेंस मटेरियल लोगे पढ़ने के लिए, वो खर्चा होगा. उसके बाद फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अगर आप कुछ भी अगर आप फ्लैट्स में रह रहे हो तो आपका ये खर्चा होगा. अदर देन ऑल द एक्सपेंसेस आर ऑप्शनल. अगर आप उसको खर्चा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अगर आपको फूड नहीं पसंद है बाहर से मंगाओगे. सो दीज आर ऑल एडिशनल एक्सपेंसेस. इफ यू वांट टू सेव देम यू कैन सेव, एंड इफ यू स्पेंड, एंड इफ यू वांट टू स्पेंड देन यू कैन स्पेंड. ठीक है, सो दीज आर योर एक्सपेंसेस. एंड द फीस आई विल से दैट इट डिपेंड्स ऑन कॉलेज टू कॉलेज. सो आपको जो कॉलेज मिलेगा, बट मोस्टली उनकी 30K के अंदर ही DU की सारी फीस होती है. सो यू कैन सी दैट. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पॉइंट दैट इज ओरिएंटेशंस. सो फर्स्ट डे आपकी ओरिएंटेशन होती है, जिसमें वाइस प्रिंसिपल गिव्स यू अ नोट एंड वेलकम्स यू टू द कॉलेज एंड टेल अबाउट द कोर्सेज दैट दे हैव. प्रेसिडेंट गिव देयर स्पीचेस एंड ऑल दैट टेक्स प्लेस. ठीक है, एंड इट माइट गेट अ लिटिल बोरिंग बिकॉज मेरे टाइम पे हम सबको ये लग रहा था कि कब खत्म होगी ओरिएंटेशन. ठीक है, एंड यू आर ऑल्सो अलाउड टू टेक योर पेरेंट्स अलॉन्ग विद यू फॉर द ओरिएंटेशन. प्लस कीप इन माइंड दैट आपको फी रिसिप्ट लेके जाना है, अदरवाइज यू वोंट गेट अ एंट्री इन योर कॉलेज. जो अपने कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आपको एंट्री नहीं मिलेगी, बिकॉज स्टार्टिंग में फी रिसिप्ट दिखाओगे तभी उनको प्रूफ होगा कि येस यू आर इन दिस कॉलेज ओनली. ठीक है, एंड ओरिएंटेशन में वो आपको सब समझाते हैं व्हाट कोर्सेज डू दे ऑफर, हाउ द कॉलेज एक्चुअली वर्क्स, एंड दे विल ऑल्सो टेल यू दैट यू हैव टू परस्यू 4 more सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद योर कोर सब्जेक्ट्स दैट योर GE, SEC, WAC एंड AEC. नाम से कुछ समझ नहीं आया होगा, आई नो, एंड फॉर दैट रीजन अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस इज ऑल्सो कमिंग सुपर सून. सो मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो कमिंग बैक टू ओरिएंटेशन, ठीक है, यू आर ऑल्सो अलाउड टू टेक योर पेरेंट्स अलॉन्ग विद यू. फी रिसिप्ट लेके जानी है, ये सब याद रखना. एंड देयर इन सम कॉलेजेस देयर इज डिपार्टमेंट वाइज योर ओरिएंटेशन. उसमें जो टीचर्स आपके डिपार्टमेंट के होते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा सा आपको सम अप देते हैं कि आप क्या पढ़ोगे. एंड जो सीनियर्स वगैरह वहां होते हैं, दे इंट्रोड्यूस यू टू देमसेल्व्स एंड यू ऑल्सो हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू देम. सो फॉर दैट प्लीज prepare introduction for you, a little 1 to 2 minutes introduction for you.
बिफोर हैंड, बिकॉज बाद में जब इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करनी हो वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाता है. मेरे को हुआ था बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी कि मतलब दे विल आस्क फॉर इंट्रोडक्शन एंड द इंट्रोडक्शन नॉट ओनली इंक्लूड योर नेम एंड वेयर डू यू कम फ्रॉम. ठीक है, तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन तैयार रख लेना पहले से, सो दैट आपको बाद में एम्बैरेस फील ना हो. ठीक है, एंड आई विल से दैट कि फर्स्ट डे इतना जरूरी नहीं होता है जाना. यू हैव होल 3 years ahead of you to figure all that out. ठीक है, तो अगर ये मत सोचना कि अगर फर्स्ट डे अटेंड नहीं करा तो सारा फन वगैरह मिस हो गया. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट डे पे ही आपके कोई फ्रेंड्स नहीं बन जाते हैं. अकॉर्डिंग टू मी तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है टू फाइंड द पीपल हु मैचेस योर वाइब. सो ये मत सोचना कि अगर फर्स्ट डे नहीं गए तो सारा फन मिस हो जाएगा. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ लास्ट एंड द मोस्ट अवेटेड पॉइंट, दैट इज स्कॉलरशिप्स. So for the scholarship, I will say that there are 2 websites on which you have to keep a regular tab once you are admitted into the college, so that अगर उस पर कोई भी नवी scholarship आती है तो आप उसको उसी टाइम भर सकते हो once you meet the eligibility criteria of that particular scholarship. And there is one more scholarship जो आपको EWS student that is your economically weaker section, अगर आप उससे belong कर रहे हो, then you can get a scholarship of 10,000 rupees and the name of the scholarship is NSP. So the link to all these websites, the 3 websites that I have told you, I will give them in the डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो मेक श्योर यू चेक इट आउट. एंड अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है अपनी पूरी डीयू की जर्नी में, देन यू कैन बुक अ टॉपमेट सेशन विद मी, द लिंक टू विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, उसमें वी विल इंटरेक्ट फेस टू फेस एंड आई विल से दैट कि आप क्या कर सकते हो उसमें. एंड आपको अगर कुछ भी क्वेरी है कि रिज्यूमे कैसे बनाना है हमारा, अगर स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है तो कौन सी करनी चाहिए. ठीक है, सो आई विल हेल्प यू ऑल विद दैट. एंड अगर आपको लग रहा है कि ड्यू में अटेंडेंस इशू होता है, देयर इज, बट फर्स्ट ईयर वालों को इतनी टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज फर्स्ट ईयर में तो क्रेज होता है कि कॉलेज जाएंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ईयर वालों को तो अटेंडेंस इशू नहीं है. वैसे 75% आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी होती है. ठीक है, सो या दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. एंड इफ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल, लाइक कर दिया करो. एंड फॉर मोर interactive sessions like this, kindly subscribe to my channel and tell me in the comment section what next video you would like to see. I will be more than happy to make it for you. And yeah, meet you in the next video. Bye.